Hello, students. Once again, I'm Vinay Mishra for the second session of mole concept. Now, previous video, we have discussed about the basic concept of mole concept. That was the easiest way to calculate the number of moles and number of atom and all that. I have now this time I will just repeat give the summary of that previous session. So now we have the summary of the previous session is that now we will do as I have told you in the previous session. This is the summary of whole mole concept, and on the basis of this theory, this summary, we can able to do 2000 question. Now, what is mole? How can we define the mole? In the previous session, I have given you the amount of the substance which contains as many as particle as present in 12 grams of carbon 12 isotopes is known as 1 mole. Now, because it is as many as particle, many is related with the number. Many जो है number से related होता है. तो according to the Avogadro, this number is nothing but the Avogadro number, which is denoted by n or n naught, or it is Na, which is equal to 6.023 into 10 to the power minus 3. तो Avogadro number की जो value है वो 6.023 into 10 की power 23 होती है, और आप भी जानते हैं. Similarly, we have related this number of moles with the atomic mass. मैंने आपको बताया था atomic mass क्या होता है. It is the average relative weight. Average mean average जब भी निकाला आता है तो एक से ज़्यादा होते हैं, because we are talking about the isotopes. So that's why we are taking the average. Relative means when we are going to compare with anyone, so it is average relative weight of the atoms of an element which is as compared to 12 grams of carbon 12 isotope. जिसको हम लोग हर चीज को देखिए, हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं 12 ग्राम C12 आइसोटोप. सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस वेट. इन द प्रीवियस सेशन आई हैव टोल्ड यू. सो देयरफॉर because 12 grams carbon 12 isotope is equal to 1 mole, so therefore 1 mole is also equal to the atomic mass. इसके लिए मैंने आपको एक वहाँ छोटा सा एग्जांपल भी लास्ट सेशन में आपको दिया हुआ था. आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेके जाने वाला हूँ, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट एग्जांपल हियर. नाउ आज हम लोग उस एक की जगह अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे, राइट. तो मॉलिक्यूलर मास भी इसी तरह, जैसे एटॉमिक मास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो गया, 1 मोल के बराबर हो गया, उसी तरह मॉलिक्यूलर मास को भी हम लोगों ने कहा था एवरेज रिलेटिव वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड which is as compared to 12 grams carbon 12 isotope. Again we are comparing it with the 12 grams carbon 12 isotope. हर चीज को हम लोग 12 grams carbon 12 isotopes के से कंपेयर कर रहे हैं. तो एक तरह से ये केमिस्ट्री का वेट हो गया. जैसे हम लोग 1 किलो आलू खरीदने के लिए 1 किलो का एक लोहे का पीस यूज करते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ पे भी हम लोग केमिस्ट्री को हर चीज से जो मेजर कर रहे हैं 12 ग्राम्स कार्बन 12 आइसोटोप्स के बराबर मेजर कर रहे हैं, और विच इज इक्वल टू 1 मोल. सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो इक्वल टू द 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. और फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, बट आयनिक कंपाउंड नेवर बी कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, तो उसके वेट को मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलेंगे, इसलिए हम लोग वी आर यूजिंग द वर्ड फार्मूला वेट. एनी डाउट? चलो, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स at standard temperature and pressure, right? Same number. What is this number? This number is nothing but the Avogadro number, because Avogadro number 1 mole के बराबर है, तो therefore 1 mole is also equal to 22.4 लीटर of any gas. अब इस लीटर को अगर आप मिलीलीटर या सेंटीमीटर उसमें करेंगे तो यही हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर, और मिलीलीटर या यही हो जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब. For any gas at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको हम NTP भी बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और जिसका टेम्परेचर में जब भी हम लोग लेते हैं वो 273 लेते हैं केल्विन में, और प्रेशर या तो 1 ATM प्रेशर लेते हैं या 1 बार लेते हैं या 760 mmHg लेते हैं. नाउ ये तो अपने पास चीज थी मोल कंसेप्ट की, जिसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे. ना 3 फार्मूले हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे एक एटम का. देखिए ये जो एटॉमिक वेट है वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के, तो एक एटम का वेट जो होगा वो एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर होगा. सिमिलरली एक मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट ओवर एवोगैड्रो नंबर होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं गिवन वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट होगा. तो दिस इज द जीस्ट ऑफ द प्रीवियस सेशन वी हैव. नाउ आज हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस की, राइट.
देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम प्रेजेंस इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। देखिए यहां पे हम लोग कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग पीछे की टेबल को कैसे यूज करेंगे मैं दिखाना आपको। यहाँ पे 22.4 लीटर्स दिया, मतलब वॉल्यूम दिया है, और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट करने के लिए नंबर्स। तो ना अब आई एम कमिंग ओवर द, मैं पीछे की टेबल पे आ रहा हूँ, जीस पे आ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ इस वॉल्यूम को आपको नंबर से रिलेट करना, दैट इज एवोगाड्रो नंबर से रिलेट करना है, राइट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आऊं तो आपने पहले मैं मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, उसका उसमें कितने नंबर्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। इसको आप चाहे सिर्फ यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 की पावर 23 हम लोग ले लें, या हम लोग यहाँ पे सिर्फ Na भी लिख के काम चला सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो राइट द नंबर, देखें हम यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर भी लिख के काम चला सकते हैं, या सिर्फ Na करके, क्योंकि हमें बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। नाउ तो 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है, देखिए हाफ लीटर हो गया तो एवोगाड्रो का भी हाफ हो जाएगा, तो ये कुछ और नहीं, देखिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 टाइम्स 11.2 ओवर 22.4, देखिए आप हाफ आ गया आपके पास, ये देखिए 2, या हम सीधे सीधे यहाँ पे बजाय मिस कैलकुलेशन के हम यहाँ पे लिखे हाफ ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो पहला आप लोग का आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम लोग देखें, देखिए नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देखें तो एक ऑक्सीजन में कितने एटम है, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, कंटेन्स 2 एटम इन ईच मॉलिक्यूल्स। तो Na that is Avogadro number into 2 molecules will contain how many atoms, that is Avogadro number over 2 into 2, तो कुछ और नहीं, यहाँ पे Avogadro नंबर आ जाएगा। Avogadro नंबर की आपको वैल्यू मालूम है 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स। देखिए अब हमने यहाँ पे एटम्स भी निकाल लिया और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिया। मॉलिक्यूल्स का जो आंसर है हाफ ऑफ द Avogadro नंबर हो गया, वो आप यू कैन एबल टू कैलकुलेट इजीली। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, अपने कमेंट में जरूर लिख के भेजें। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मास ऑफ 94.5 ml ऑफ गैस, देखिए वॉल्यूम फिर आप ले रहे हो, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज फाउंड टू बी 0.221 ग्राम्स। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम को आप वेट से रिलेट कर रहे हो, तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे हमने इसलिए दे रखा है कि आप कैलकुलेशन तो आप करेंगे और लास्ट में आप उसका आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है। अब देखें इसको अगर आपको समझाना चाहूं तो वॉल्यूम को वेट से रिलेट करना है, और जीस्ट में आके देखते हैं कहां पे, देखें वॉल्यूम आपके पास ये लास्ट में एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब चूंकि वहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वहां पे हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे, हम लोग वहां पे जस्ट मैं वापस आ रहा हूं, देखें हम लोग वहां पे बात कर रहे थे एनी गैस, गैस के या मास की बात करो तो गैस का हमेशा मॉलिक्यूलर मास होता है, तो जाहिर सी बात है हम इसको मॉलिक्यूलर मास से रिलेट कर देंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूं, आपको दिखाता हूं 94.5 ml ऑफ एनी गैस एट एसटीपी फाउंड टू बी इतने ग्राम। तो देखिए हम लोग को आधा क्वेश्चन दिया हुआ 94.5 ml ऑफ एनी गैस, गैस का नाम नहीं दिया, क्योंकि गैस का नाम अगर दिया होता तो आपको ऐसे एटॉमिक वेट निकाल देते। एट एसटीपी पे इतनी ml की वेट जो है वो 0.2231 ग्राम्स है। तो देखें जो एवोगाड्रो नंबर या कहते हैं 22.4 या कहते हैं 22,400 ml, सीधे मैंने लीटर को वहां पे ml में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हमने कहा था मोलर वॉल्यूम। क्यों मोलर? क्योंकि इस वॉल्यूम का जो वेट होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, दैट्स व्हाई दिस वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का जो इस गैस का जो वेट होगा, इतने वॉल्यूम का वेट होगा, वो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो ये देखिए सॉल्व हो गया, 2231 ओवर 94.5 टाइम्स 24 ml। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास देखिए ये आंसर यहाँ पे इसीलिए लिखा कि आपको मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये इतने ग्राम्स आ रहा होगा, इसीलिए इस ग्राम्स को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, बिकॉज
the atomic weight is always given in the grams. It never be in the kilogram, it never be in milligram, it never and anything else. The atomic weight is always in the grams, so molecular weight is also in grams. That's why we are calling it grams molecular mass or grams atomic mass. चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हम लोग क्या आगे क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो एवोगाड्रो से रिलेट करना है। इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम्स ऑफ, देखिए उस वाटर का उसमें नंबर काउंट करने हैं जिसका वेट है 0.05। एक ड्रॉप का जो वेट है वो 0.05 है, तो उसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। कैसे हो सकता है, देखिए नंबर्स और वेट, इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। देखिए एटॉमिक वेट दिया हुआ, हाइड्रोजन का आपको मालूम 1, ऑक्सीजन का 16, तो दैट इज 1 × 2 हाइड्रोजन का एटम प्लस एक एटम यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस 16, दैट इज 18 ग्राम्स। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, 0.05 ग्राम्स ये आपको गिवन है, इतने ड्रॉप में आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने। तो देखिए मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे अगर बात करूं तो एवो, देखिए ये इसका वेट दिया हुआ आपको, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम, आपने कैलकुलेट कर लिया। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स, देखिए 18 ग्राम्स क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के। तो जाहिर सी बात है इतना वेट जो है वो 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन्स करेगा, किसके, वाटर के। तो 0.05 ग्राम्स जो ड्रॉप का वेट है उसमें कितने हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे निकालेंगे, दैट इज 6.023 × 10⁻23 ओवर 18 टाइम 0.05। इसको सॉल्व करके आप लेके आएंगे। सॉल्व करने की जिम्मेदारी हर क्वेश्चन में आपकी है। मैं सीधे सीधे यहाँ पे फिर भी आपको आंसर इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये नहीं, दैट इज 1.67 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। चेक करेंगे आप आंसर इसलिए दे रहा हूँ, चेक, कैलकुलेशन आपकी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है आपको कैसे सॉल्व होना है ये आना चाहिए। तो now by this way we can calculate the number of molecules in a one drop of water whose weight is 0.05, जिसका वेट जो है 0.05 ग्राम है, उसमें नंबर ऑफ एटम जब कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 1.6 × 10⁻21। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखें। Now next question we have the calculate the number of atom, again numbers, each type of 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इतने ग्राम सोडियम कार्बोनेट, मतलब वेट आपको दिया है और उसको नंबर्स ऑफ एटम से आपको करना है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि 5.3 ग्राम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, कितने मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के, पहले उसको कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा। क्या होता है देखिए कैसे निकालेंगे, दो एटम यहाँ पे सोडियम के हैं, सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23 ग्राम, प्लस कार्बन का एक एटम है उसका वेट होता है 12 ग्राम्स, प्लस ऑक्सीजन का वेट आपके पास 16 है, एटम आपके पास 3 है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करके इसको सम अप करेंगे तो ये आपके पास आएगा 106 ग्राम्स। देखिए आधी बात, अगर आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया तो आधी बात तो आपको समझ में आ गई कि क्या होना चाहिए। देखिए 106 ग्राम, 106 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। कितने मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा, कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सो 5.3 ग्राम्स कितने कैरी करेगा, बहुत सिंपल है, सब यूनिटरी मेथड है कि आपको कितना इजी आ गया। मोल कंसेप्ट इससे इजी कोई आपको करा नहीं सकता, मैं इतना जहां तक समझता हूं। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने आप भी ट्राई करना चाहिए इसको, जब भी जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें उसको जरूर आप यहाँ पे ट्राई करें तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सीधे आपके पास देखें, आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे आपको नंबर ऑफ 6.023 × 10⁻23 अपॉन 106 5.3, ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, वो जो भी नंबर्स आएंगे, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स आपके पास आते हैं उसको आपको कैलकुलेट करके निकलना पड़ेगा।
है ना। मेरे पास जो मेरे हिसाब से जो आएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22 आएगा। इसको आप चेक करेंगे कितना आएगा। ये मेरे को अभी इसमें भी इसको मैं देखिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके नंबर्स आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, आप उस वैल्यू को चेक करेंगे कितने। देखिए मान लेता हूँ मैं ये यहाँ पे मान लेता हूँ x आ रहा है, मान लेते हैं, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो आप देखिए सारे एटम, नंबर ऑफ ईच एटम आपको निकालना है। तो एक सोडियम कार्बोनेट में 2 सोडियम है, तो आपकी जो भी वैल्यू, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने हो जाएंगे, जो भी आपकी x की वैल्यू आई होगी उसका डबल, दैट इज 2x। x आप कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह कार्बन कितने हो जाएंगे, देखिए एक हर सोडियम कार्बोनेट में एक कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे वो x के बराबर ही हो जाएंगे, दैट विल बी x। और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं तो एक सोडियम कार्बोनेट में आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपके पास 3x आ जाएगी। x कैलकुलेट करने की बारी आपकी है। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और जल्दी मैं आपको फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं दूंगा जरूर। चले एक देखिए और शानदार क्वेश्चन है, एक और शानदार क्वेश्चन अपने पास आ गया। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सब लोग जानते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट, जो पौधे में हरे रंग का जो पत्तियों की हरी कलर है वो क्लोरोफिल के कारण ही। देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंटेन्स 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाई वेट। बाई वेट मीन्स वेट के मतलब जो 100 आप ले रहे हो वो भी वेट क्लोरोफिल का वेट होगा, और 2.6 ग्राम्स में अगर आप 100 क्लोरोफिल का वेट ले रहे हो तो उसमें मैग्नीशियम का वेट जो होगा वो 2.6 % होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम मेटल इन 2 ग्राम्स ऑफ क्लोरोफिल। अगर आपके पास 2 ग्राम क्लोरोफिल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एटम, वेट भी नहीं कैलकुलेट करना, एटम्स कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है एटम तो आप बाद में कैलकुलेट करोगे, पहले तो आप मैग्नीशियम का वेट कैलकुलेट करो। 2 ग्राम्स क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का वेट कितना है, कैसे करेंगे। देखिए क्लोरोफिल आपके पास, वेट ऑफ क्लोरोफिल, मैं फिर आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, कैलकुलेट आपको वेट ऑफ क्लोरोफिल कितना दिया हुआ आपको, दैट इज यू हैव 2 ग्राम्स, और उसमें 2.6% अगर मैग्नीशियम है तो वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Mg, दैट इज 2 ग्राम्स का 2.68/100। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वेट आपके पास आएगा, दैट इज 0.054 ग्राम्स। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आती है। 2 ग्राम्स में मैग्नीशियम का वेट आपने निकाल लिया 0.54 ग्राम्स। नाउ इस वेट में अगर देखें, अगर मैं इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट आपको 24 लिखा हुआ है, अगर 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम जो होंगे वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होंगे, तो इस वेट में कितने एटम होंगे, तो देखिए 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स, क्योंकि एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, या एटॉमिक वेट जो है वो 1 मोल्स के बराबर होता है। लास्ट डे भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, दैट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ये आइडियल है, ये हम लोग कहां से लेके, ये स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं वो हम लोग जीस से लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एटॉमिक वेट को हमने नंबर ऑफ मोल्स से इक्वेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स सॉरी एवोगाड्रो नंबर से इक्वेट कर लिया। तो दिस वेट जो 2 ग्राम्स मैग्नीशियम क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम का वेट था वो कितना था, 0.054 ग्राम्स। इतने ग्राम्स मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर आप निकालेंगे, ये आपके लिए कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगली जब सेशन में हम लोग की मुलाकात होगी तो हम लोग स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, वो जो मोल कंसेप्ट में है, जो उसकी बात करेंगे। तो टिल देन प्लीज ज्वाइन अस।